ਫਿਲਮ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2 ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2 ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 2 ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਸਟ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ। ਅਨਾਨਿਆ ਐਂਡ ਮਨਜੋਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਪੂਜਾ ਕੈਮ ਆ, ਪੂਜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮ ਆ, ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਸੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਾਨਿਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਲਾਈਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਸੀਕੁਅਲ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਕੁਅਲ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ अपनी फिल्म को प्रमोट करके एंड कम करके? मैं आपका क्वेश्चन समझ गई, मैं सॉरी पंजाबी में जवाब नहीं दे पाऊँगी, पर मुझे हमेशा आकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत प्यार मिलता है, घर वाली फीलिंग आती है हमेशा। मैं बहुत बार आ नहीं चुकी हूँ पर हमेशा घर वाली फीलिंग आती है। एंड बिफोर नोइंग आयुष्मान एज एन एक्टर, आई न्यू हिम एज अ फ़ैन, क्योंकि मैंने भी उसकी सारी पिक्चरें देखी थी, थिएटर में सारी पिक्चरें देखी थी। क्योंकि जैसे आप कह रहे हो, अगर आयुष्मान खुराना की पिक्चर है तो डेफिनेटली मज़ा तो आने वाला है, कुछ मैसेज मिलने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ सॉलिड फिल्म। और मुझे भी हमेशा वैसे लगता था, दैट्स वाई जब ऑफर हुई थी मुझे पिक्चर, मुझे आयुष्मान वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मैंने हाँ भी कहा। डेफिनेटली सीक्वल है, मैंने पहली वाली पिक्चर देखी है, आई वांटेड टू वर्क विद मनजोत, आई वांटेड टू वर्क विद राज सर, तो देयर वर ओनली रीजंस फॉर मी टू से यस। ਐਂਡ ਮਨਜੋਤ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ फीलिंग है, किਵੇਂ लग रहा है? जी, मेरे को ना हमेशा लालच होता है चंडीगढ़ आने का, एक अपनापन मिलता है, फैमिली है, यहाँ पे लोग इतना प्यार देते हैं, इतने प्यार से खिलाते हैं, और यहाँ का खाना, ओ माय गॉड, मतलब लोग दूर दूर से आते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। पंजाबी तो पंजाबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हाँ तो दिल्ली वाली पंजाबी है तो मैं दिल्ली में ज़्यादा कम्फर्टेबल तो यहाँ भाजी खाना, अपनापन, प्यार, फैमिली बहुत मिलता है, तो आई एम ग्लैड। की खा के आए हो भाजी? खा के की आए हो तुसी? हाँ जी, चंडीगढ़ आके की खाया? कुलचे खा के आया मैं, फुल एनर्जी है मेरे में। क्या बात है, क्या बात। ਇਹ ਐਕਸੈਂਟ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਜਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਭਾਈ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ ਯੂਨੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੋਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲਹਿੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਇਹ ਸੀ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, सबसे क्लोज तो मैं हूँ। ਆਹੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਭਾਈ ਮਨਜੋਤ ਭਾਜੀ ਫੁਕਰੇ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। पूजा की आवाज़ का मतलब, हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। 25 अगस्त होना बस आई रहा यार रेडियो काम करता सी, मैं बहुत फायदा होया रेडियो काम करता सी। ਸੁਪਰ ਸੁਪਰ। इन्ने प्राइम कितने रेडियो के मैं की दसा ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਵੈਸੇ
ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਲੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾੜੀ ਲੇਡੀ बनना मुश्किल है, लेडी होना और भी ज़्यादा मुश्किल है। साड़ी समाज की एक गल है, बट 4 घंटे बाद मेरी दाड़ी आ जाती सी, दाड़ी नाल साड़ी जाती ही सी, तो मैं शेव करनी पैंती सी 4 घंटे बाद। आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ हाँ जी, मैनू अपने आप को प्यार पहली बार होया। मैं इन्ना सेल्फ ऑब्सेस्ड सीगा ही नहीं, मैं पहली बार आई बिकम सेल्फ ऑब्सेस्ड आफ्टर वाचिंग दिस फिल्म। ਜਦੋਂ ਮਿਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ मैं तुहानू दसा, मैं पहले ही पिक्चर की आर्टिकल 15 हाँ यूनीफॉर्म मिसिज ने कैसे यूनीफॉर्म कर लिया यूनीफॉर्म जिसको हॉट लगते हो, पहली बार उन्हें ये घर में लेके आना। हाय सर, हाय पूजा बोल रही हूँ। वेलकम पूजा जी। सर मेरे को ये पूछना था, आपने 45 डिग्री सेल्सियस पे इतना असेंबल होके परफॉर्म किया, पहले तो कितना चैलेंजिंग था? इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि मथुरा में शूट कर रहे थे हम 45 डिग्री सेल्सियस में। नॉर्मली हम चंडीगढ़ में इतना टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों के टाइम पे, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मेकअप पिघल रहा था, लहंगा चुभ रहा था, पता नहीं इतने भारी भारी लहंगे भी होते हैं, और हमें पता लगा कैन के बारे में, यू पुट कैन अराउंड लहंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, हाउ डू मैनेज दिस। बट फुल रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन आउट देयर, एंड ड्रीम गर्ल 2 ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए। आई थिंक अब तक की सबसे चैलेंजिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 है। चैलेंजेस तो ये था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप स्क्रिप्ट उस लेवल तक बेंचमार्क तक पहुंच पाए जो ड्रीम गर्ल 1 की स्क्रिप्ट थी। अब ये आजकल एक थ्योरी चल रही है कि सीक्वल्स चल रहे हैं, तो थैंकफुली हमारा भी सीक्वल है, एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म। काफ़ी टाइम से कॉमेडी फिल्म नहीं आई है, सो आई रियली एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम इट। कोविड के बाद ही शूट हुआ है। नहीं लिखी तब उन्होंने तब थी, लेकिन वी स्टार्टेड शूटिंग इन 2022। हाँ जी। हेलो आयुष्मान सर, सिमरन फ्रॉम देसी चैनल। Hi, Simran। जैसे कि हमने पूजा की आवाज़ सुनी है आपसे, तो आपने कभी रियल लाइफ में प्रैंक किया अपने किसी सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ, या आपने किसी फ्रेंड इस सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ नहीं किया, लेकिन रियल लाइफ में मैंने रेडियो पे ज़रूर प्रैंक किया है। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी, उसके पापा जब फ़ोन उठाते थे, मैं 14-15 साल का था, तब मैं लड़की की आवाज़ में बात करता था, पापा उठाते थे उसके, तो फ़ोन दे देते थे अपनी बेटी को। तो ये हो चुका है मेरे साथ। उसका बात हो जाती थी? हाँ, बात हो जाती थी। एंड भाई Manjot, hi, I'm Gurnaz from Tribune. Hi, how are you? Good, how are you? Very well, very well. So, this is your second film with Ayushman. Yes, And what is the kind of bond that you both share? And can you tell us 3 things that we probably don't know about Ayushman? I think कुछ कसर की लोड़ नहीं। टीम ही बहुत सारी है यार, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं पाजी में। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी मतलब हम मतलब एक होता है ना, जब मैं पहली बार नरेशन ले रहा था ड्रीम गर्ल 1 का, तो एक ना मुझे था कि यार पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कनेक्शन कैसा बैठेगा। तो बट एक पंजाबी वाइब आई, एकदम से आँखों में कनेक्शन हो गया, भाई अब फन करना है फिल्म में। तो वाइब हमेशा आई है, और अपनापन है, और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं सेट पे, और बहुत केयरिंग है, यानी कि मैं कहीं पीछे रह गया तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव ऑलवेज। तो आई लव दिस थिंग अबाउट हिम। So sweet, yeah. Thank you, Manju. Love you. Ayushman, is there something that you want to tell us about Manjot? Manju is a very simple guy. I love simplicity. I love working with people who are simple, not very complicated. Because as an artist, if you're simple and you're rooted, so I guess you're more malleable as an artist. So I really love that about him. हाय अनन्या। क्योंकि तुझे फर्स्ट आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आप फर्स्ट में नहीं थे, तो सेकंड में सीक्वल में जब आप आते हो तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा होती है। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो? नहीं, डेफिनेटली चैलेंजिंग था, क्योंकि पहली वाली पिक्चर हिट थी और ऑलरेडी उन्होंने साथ में काम किया था, तो मुझे लगा कि मैं बाहर से आई हूँ, क्या मैं उनके साथ रोज़ बन पाऊँगी, कैसा लगेगा, मुझे आकर ख़राब नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी सेट था। पर मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अपनापन लगा जब हम शूट करे थे। सब बहुत सपोर्टिव थे, जो भी सीनियर्स भी हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की।
एंड या आई जस्ट वांटेड टू हैव फन व्हेन आई वाज डूइंग इट, क्योंकि मेरे डैड हमेशा कहते हैं जब आप कॉमेडी फिल्म कर रहे हो, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, जस्ट लर्न हाउ टू हैव फन एंड वर्क विद गुड पीपल, एंड दैट वाज द फिल्म, या मुझे इस फिल्म में लगी कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो अच्छा ही होगा। ਜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਜੀ, ਚੰਗੀ ਪਾਂਡੇ ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? चंकी पांडे जी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आई हैव सीन बहुत सारी फिल्में उनकी मैंने देखी है। मेरी पहली फिल्म जो मैंने थिएटर में देखी थी वो तेज़ाब थी और मैंने परसों ही अनन्या को बताया कि पहली फिल्म तेज़ाब थी और चंकी सर का उनमें बहुत अच्छा रोल था। एंड हमारी फिल्म में भी प्रमोशन करते समय उन्होंने एक फ़ोन कॉल प्रैंक कॉल की थी मेरे साथ, विच वॉज वेरी वेरी फनी एंड हिज सेंस ऑफ टाइमिंग इज़ ग्रेट। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗਏ ਆ? यार घर जाने का टाइम ही नहीं है, वी हैव टू गो टू जयपुर आफ्टर दिस। मैं खुद नहीं जा पा रहा घर तो। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी, उन्होंने एवरी सारे बॉम्बे में ही है, लाइक माई मदर स्टेज विद अस नाउ एंड या देयर इज नोबडी एट होम। हाय आयुष, दिस साइड, Hi. मुस्कान फ्रॉम दिस Hi, साइड। मुस्कान। आयुष, जैसा कि बॉलीवुड में बहुत सारे जॉनर्स हैं, कोई लव जॉनर में एक्सपर्ट है, कोई एक्शन जॉनर में पसंद है सबको, मतलब एक अलग अलग सबका एक जॉनर बना हुआ है। आपका एक अलग जॉनर है, हटके जॉनर, आयुष जॉनर, जो कि मतलब सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट मूवी से ही अब तक मतलब बधाई हो, विकेट ओनर और जितनी भी मूवीज़ हम देखें उसमें एक अलग टॉपिक होगा, तभी आयुष हमें उस मूवी में दिखेंगे। तो ये डिस्क्लेमर आपने लगाया हुआ है डायरेक्टर्स के लिए, या फिर क्या है कि डायरेक्टर्स आपके पास ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, या फिर आपने पहले ही बोल रखा है कि कुछ हटके होगा तो ही आना? मतलब कोशिश तो यही रहती है कि जब तक एज एन आर्टिस्ट आप कुछ अलग ना कर पाएँ जो हिंदी सिनेमा में पहला ना देखा हो, कुछ ऐसा टॉपिक आप लेकर आए हैं। आई थिंक इट्स जस्ट मुझे मैं एक ऑडियंस की तरह स्क्रिप्ट को कंज्यूम करता हूँ। ऑडियंस जैसे आप देखते हैं फिल्म, जब मैं नरेशन लेता हूँ मैं पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता हूँ, अगर मुझे मज़ा आ रहा है और मैं इंट्रीग हो रहा हूँ, एक नए टॉपिक पर बात हो रही है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और इसमें भी यही है, पिछले 20-25 साल में कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें एक एक्टर मेल लीड जो है वो फीमेल कैरेक्टर प्ले कर रहा हो, सो इट्स वेरी डिफरेंट। यहाँ है विनू दिस साइड, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਫੀਮੇਲਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈंट लुक ਵਿੱਚ नजर आएगा? बिल्कुल जी, आई थिंक जब तक कुछ डिफरेंट करने का मौका नहीं मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ खुद मज़ा नहीं आता एक्चुअली एज एन एक्टर। पहले ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ कमल हासन सर चाची चाचू ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ 90s, ਇਹ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਗੋविंदा सर ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆਮਿਰ ਸਰ ਦੀ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਰ ਦੀ। आई थिंक ये मेरे जी इंस्पिरेशन है सारे, एंड आई थिंक ऑडियंस ऑलवेज वांट्स टू लुक समथिंग डिफरेंट। ਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਡਲੇ ਜੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ 3? ये डिपेंड करता है जी राज शांडिले ते, बिकॉज ही इज़ अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। आई थिंक उन्होंने कोल पूरे आइडियाज़ का भंडार है। आई थिंक ही व्हेन ही ब्रीथ्स ही जस्ट सेज डिफरेंट पंचेज एंड ही इज़ वेरी फनी। तो आई एम श्योर उन्होंने कोल कोई आइडिया तो होना ही। आयुष्मान, It really depends on the subject. If I get to do something very out of the box, away from my core genre, I would love to do something about it. Sure. ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ from Daily Post। ਓਕੇ ਸਰ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? मुश्किल तो वही है जी, बंदे को कुड़ी बनाना बहुत मुश्किल है। पहली गल तो ये तुम ट्रेलर्स देखा होना कि मैं बोल रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक असेंबल्ड हूँ मैं, सो दैट वाज प्रीटी टफ। फिर भी स्किन तो मेरी सी सोल आत्मा जी सी वो कुड़ी दी सी, पूजा दी सी 3 घंटे लगते सी तैयार होने, so that was very difficult because if you're shooting in summers 40 डिग्री सेल्सियस में अगर आप शूट कर रहे हो तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, because you're being away, तो पसीना भी आ रहा है। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई लॉस्ट 10 kgs फॉर दिस वन, तो चंडीगढ़ के राज की मेरा कुछ आई थिंक आई वाज वेरी बल्की फॉर दैट, बट इन दिस वन आई लॉस्ट इट। यस। हाय मनजोत कमाई ਦੇ ਸਾਈਡ ਫਰਮ ਦ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਸਤੇ ਐਂਡ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ। ਫਰਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਈਬ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੱਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇੱਕ ਜੋ
सेंस ऑफ ह्यूमर कह लो, ਉਹ ਵਾਈਬ कह लो, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ। चैलेंज का तो मुझे पता नहीं इतना, क्योंकि जो मैं करता हूँ, जो मुझे बोला जाता है, मैं वैसा थोड़ी बहुत वर्कशॉप्स होती हैं, थोड़ा कैरेक्टर प्रिपेयर करते हो कि अच्छा इसमें जैसे आप प्लेइंग स्माइली, तो वो बड़ा विटी बंदा है, हाजिर जवाब देता है और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके पास सॉल्यूशन है। और इस फिल्म में ये है कि मैं जो कहानी आगे बढ़ रही है वो मेरी वजह से ही बढ़ रही है, मैंने ही सारे स्यापे करे हैं इस फिल्म में। तो एंड आई थिंक मेन क्रेडिट गोज़ टू राज चंडेला सर जो डायरेक्टर है, उन्होंने इतना इसको ब्यूटीफुली लिखा है इस फिल्म को, इस स्क्रिप्ट को, एंड उनके पास इतने सारे पंचेस होते हैं। एंड मुझे याद है मैं कभी भी जाता था उनके पास पूछने के लिए कि सर मैं इसमें क्या लूँ, एंडिंग में कोई डायलॉग बोलना है तो वो 10 ऑप्शन देते थे और मुझे 10 मिनट लगते थे हंसते हुए कि मैं नॉर्मल हो जाऊँ, फिर मैं जाके कैमरा के आगे टेक दूँ। तो आई थिंक उन्होंने बहुत एक कंफर्ट फील कराया है, उन्होंने अच्छी लाइंस दी हैं, अच्छा एक कैरेक्टर बिल्ड किया है स्माइली का एंड सबका ऑब्वियसली। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ एंड या ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ।